Hello everyone, welcome to Code Tonight. In this video, I am going to cover very important topic of computer science, which is known as data structure. Quickly discuss the agenda of this video. Firstly, we will discuss about the data structure. Then we'll discuss about the importance of data structure. Then we'll talk something about constraint. Okay. कभी तुमने सोचा है डेटा स्ट्रक्चर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? कि पहले कभी तुमने सोचा है कि यार डेटा स्ट्रक्चर वर्ड आया कहाँ से है? Now, यार मैं तुमको एक easy definition डेटा स्ट्रक्चर दे सकता हूँ. It is just a way of storing data. Okay, but do you really understand what it means? Let's understand the data structure today. Okay, उसके लिए अपने को थोड़ा सा अंदर जाना पड़ेगा कंप्यूटर साइंस के. अपने को समझना पड़ेगा कि यार डेटा स्टोर कैसे होता है कंप्यूटर. ओके, या डेटा कहाँ स्टोर होता है कंप्यूटर में. जैसे वी ऑल नो डेटा is stored into a disk. Okay, so this disk is divided into three parts. This thing is known as sector, and this ring is known as track, and the intersection of this sector and track is known as block. Let's give them a number quickly. Sector 1, this is sector 2, sector 3, this is sector 4, 5, 6, 7 and 8. This is track 1, ये track 2 ये track 3. Now अगर मुझे कोई सा भी ब्लॉक एक्सेस करना है तो मैं ये सेक्टर नंबर और ट्रैक नंबर से एक्सेस कर सकता हूँ. ठीक है, जिसके मैंने बोला कि सेक्टर नंबर 3 है और ट्रैक नंबर 2 है. मैं जा सकता हूँ कि सेक्टर 3 ये रहा, ट्रैक 2 ये रहा, और ये वाले ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूँ. अब ये ब्लॉक कुछ इस तरह दिखता है. ठीक है, इसमें ये ब्लॉक की एक साइज होती है. से दिस ब्लॉक इज अ साइज ऑफ 512 बाइट. ओके, सो ये बाइट 1, बाइट 2, बाइट 3 एंड दिस इज ऑफ बाइट 511. क्या होता है यार, ने पढ़ा होगा एक टेबल होती है. ठीक है, वी हैव अ टेबल. सपोज वी हैव अ स्टूडेंट टेबल in which we have a student enrollment number and its name. Now the size of enrollment number is going to be 10 byte and name is going to be 50 byte long, say. So this total, like this is total 60 byte. Now any entry in this table is going to be of 60 byte, right? ओके, तो ये एंट्री यहाँ पर स्टोर होती है. सर यहाँ पर ये अप टू 60 रहेगा और ये एंट्री डाटा में स्टोर. ठीक है, इस तरह डिस्क में स्टोर होती है. ठीक है, now you know how this data like how this data is stored into a disk. This disk is also known as secondary memory. Okay, there is one more thing in the world which is known as primary memory, which is nothing but our RAM. Whenever we run any program runs into a RAM. This program needs some data, perform some operation. पर यार डाटा तो अपना मेन मेमोरी में है ही नहीं, ये तो सेकेंडरी मेमोरी में है. So we fetch the data from the secondary memory into the main memory. Now, after performing the operation, we update the data or may not update the data. But if we update the data, we store it again into the secondary memory. Now we know how the storage works in secondary memory. We can store the data anywhere in the disk. Okay, say I store the data in this block. Now the second row I store here. Now the next 5 rows I store here. Now the remaining data is stored here. अब ऐसे स्टोर करने में प्रॉब्लम क्या है डाटा को यार? प्रॉब्लम ये है कि जब तू अगली बार इस डेटा की जरूरत पड़ेगी तो तुझे यार इसको फेच करने में बहुत टाइम लगेगा. तुझे एक रो यहाँ से निकालना पड़ेगी, दूसरी रो यहाँ से निकालना पड़ेगी, अगली रो यहाँ से निकालना पड़ेगी, अगली रो यहाँ से निकालना पड़ेगी, विच इज क्वाइट इनएफिशिएंट, राइट? तो क्या करते हैं अपन इसको स्टोर भी इस तरीके से करते हैं सेकेंडरी मेमोरी में, ताकि जब अपन उसको नेक्स्ट टाइम रिट्रीव करें ना तो अपन उसको इफिशिएंटली रिट्रीव कर सके. ओके, एंड दिस थिंग इन द वर्ल्ड इज नोन एज डीबीएमएस.
database management system. It is nothing but a storing of data into the database such that it is very efficient to retrieve the data and use the data next time, right? And same here, जो ये अपन मेमोरी में मेन मेमोरी में डेटा लेके आए, इसको अपन कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, राइट? मेन मेमोरी में समझ यहाँ स्टोर कर दिया मैंने, कहीं इस लोकेशन पे स्टोर कर दिया, कहीं इस लोकेशन पे स्टोर कर दिया, कहीं इस लोकेशन पे स्टोर कर दिया। अब मुझे इस पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है इस डाटा पे, तो यार कितना इनएफिशिएंट है ये, तुम देख रहे हो मुझे यहाँ एक डाटा मिल रहा है, एक डाटा यहाँ मिल रहा है, एक डाटा यहाँ मिल रहा है, और आई डोंट इवन हैव अ लिंक टू कनेक्ट दिस डाटा। मुझे तो पूरी मेमोरी सर्च करना पड़ेगी इस डाटा को फेच करने के लिए। अब मुझे अगर सर्च करना है कुछ मेरे डाटा में, तो मुझे तो पूरी मेमोरी सर्च करना पड़ेगी, तब जाके मुझे उसमें देखना पड़ेगा कि मेरा रिक्वायर्ड डाटा कौन सा है, फिर मैं उस पर देखूंगा कि यार जो मुझे सर्च करना है वो है कि नहीं है, विच इज क्वाइट इनएफिशिएंट, राइट? Now, there can be another way of storing data as well. Suppose I stored data in linear way, in this way. Now, is it efficient? Okay, I know this is my first data. Like my data is starting from here, and all the data is storing in a linear way. Okay, it means the next index, next memory location contain my next data, and the next of next contain the next of next data, and so on. Right? So I can easily go at the starting index and search linearly in all the memory location, right? Now this is efficient. Like this is, yes, this is efficient from my previous approach. What I have done, I have stored data in linear fashion. अब ये डाटा स्ट्रक्चर मेरा क्या कहलाएगा? लीनियर डाटा स्ट्रक्चर, which is nothing but array, stack, and queue, etc. Okay. There may be another way as well to store the data. I can store data in any location and can connect it with some pointer, right? Then access it. What is this? This is nothing but a linked list, or can be tree as well. Now, can you see here what I am doing? According to my need, what operation I need to perform, I am storing my data into different ways such that I can do that operation in efficient way. So now can I describe what is data structure? It is nothing but a way of storing data such that it is efficient to perform desired operation. Okay, now why data structure is important? Okay, it is asked in interview and many questions are directly based upon it. It is true, पर यार क्यों? नाउ अंडरस्टैंड, क्या हुआ कि तुम्हें एक ऑपरेशन, पहले वाला एग्जाम में लेते, ऑपरेशन एक्स परफॉर्म करने के लिए बोला किसी डेटा पे, ठीक है? एंड यू कम अप विथ योर own data structure such that this operation x is performed very efficiently. What did you do? You had a problem. क्या था कि मेरे पास एक प्रॉब्लम थी कि यार मेरे को है ना कुछ डेटा था जिसको मुझे इजीली कुछ भी ऑपरेशन जो एक्स था वो परफॉर्म करना था बहुत इफिशिएंटली। तो ये मेरी एक प्रॉब्लम थी, एंड व्हाट आई डिड बाय क्रिएटिंग माय ओन डेटा स्ट्रक्चर, आई जस्ट प्रपोज्ड अ न्यू सॉल्यूशन ऑफ इट। सो क्या हुआ है, इस डेटा स्ट्रक्चर ने तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी समझाई, समझ रहे हो तुम? नो अदर सब्जेक्ट कैन डिफाइन इट। like if you talk about OS, if you talk about networking, it just tells your memorizing skill। अगर तुमने वो चीज पढ़ी होगी, तुमने अगर कोई सा मॉडल पढ़ा होगा नेटवर्किंग का, तो तुम उसको बता दोगे। पर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा नहीं है यार। डेटा स्ट्रक्चर को अगर तुमने नहीं पढ़ा हो ना, तब भी तुम अपना खुद का बना सकते हो। मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है। मैं एक बार कोई ग्राफ का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, एंड मैंने कभी एडजेसेंसी लिस्ट के बारे में पढ़ा भी नहीं था, बट आई जस्ट कम अप विथ माय ओन व्हाट इज एडजेसेंसी लिस्ट। जब मैंने उसको सॉल्व करा तो मुझे पता चला यार जो ये मैंने इम्प्लीमेंट करा इसको एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं, मुझे पता ही नहीं था वो। तो डेटा स्ट्रक्चर इज समथिंग विच टेल्स अबाउट योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। इट इज अ प्रूवन वे टू जज a candidate, like it is a good, he is a good problem solver or not।
Okay, it might not be the best way, but it is the proven way, and many interviewers and many companies like ask this. Let's talk about constraint. Okay, तो constraint क्या होता है? ये चीज constraint होती है, ठीक है, ये अपने को बताता है कि जो तुमको इनपुट देने वाली है उसकी रेंज क्या होगी, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक होगी। ठीक है, नाउ यू नो व्हाट इज कंस्टेंट। स्पेलिंग सही लिखी थी क्या आपने? हाँ सही है, चलो। तो एक थंब रूल है विच यू शुड नो, your computer can perform 10 to the power 8 iteration per second. ठीक है, why this is true and ये ऐसा क्यों होता है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए इसको याद रख लो। ठीक है, सो नाउ थिंक। और अब क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस में ना तुमको टाइम लिमिट देते हैं कि 1 सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, नाउ इफ यूर एन, और तुमको अब कंस्ट्रेंट में दिया कि यूर एन कैन बी लाइक लेस देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू सपोज 10 to the power 6, so and you come up with approach which is big of n, can your solution is acceptable? Yes, of course it is 10 to the power 6 at max, the n can be 10 to the power 6 और मेरे इटरेशन 10 to the power 6 पे जाएगी जो कि 1 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, बट इफ यू कम अप विद द सॉल्यूशन विच इज एन स्क्वायर, क्या तुम्हारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो जाएगा? नो, नहीं, क्योंकि क्या होगा, 10 टू पावर 6 का अगर अपन स्क्वायर करेंगे तो वो 10 टू पावर 8 से ज्यादा हो जाएगा, राइट? फिर 10 टू पावर 12 हो जाएगा ये। क्या होगा, ये 1 सेकंड से ज्यादा ले लेगा, तो तुमको दे देगा टीएलई। नाउ व्हाई आई एम डिस्कसिंग दिस, क्या होता है कि ना, तुम इस कंस्ट्रेंट को देख के इस चीज को, अब क्या हुआ यार, तुमने देखा है यहाँ यहाँ तुमने 10 टू पावर 6 देखा, ये अनकॉन्शियसली अपन ने एक चीज करी यहाँ पर। ठीक है, अपन ने 10 टू पावर 6 देखी और देखा कि यार मेरे पास एक बिग ऑफ एन अप्रोच है, मैंने देखा कि हाँ ये अप्रोच काम कर जाएगी। अब मैंने देखा कि मेरे पास एन स्क्वायर अप्रोच है, मैंने देखा कि यार ये काम नहीं करेगी। तो सिर्फ मेरे को कंस्ट्रेंट को देख के मुझे पता चल गया कि मेरी कौन सी अप्रोच काम करने वाली है। ठीक है, नाउ यू कैन थिंक इन दैट डायरेक्शन ओनली। समझ में आ रहा है? मतलब अगर तुमको 10 टू पावर 6 दिया था कंस्टेंट, तो तुमको पता है यार एन भी काम कर जाएगा, एन log n भी काम कर जाएगा। नाउ log n कौन लेता है? बाइनरी सर्च लेता है, तो यू कैन थिंक इन बाइनरी सर्च वे। ठीक है, इन दिस वे यू कैन कम अप विद गुड सॉल्यूशन, राइट? अगर तुमको कंस्टेंट दिया है 10 टू पावर 3, तुमको पता है यार एन स्क्वायर विल डेफिनेटली वर्क, तो यू कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ एन स्क्वायर वे। लाइक यहाँ पर मैंने कुछ वेल नोन टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज लिखी है, सिर्फ इतनी नहीं होती है, बहुत सारी होती है, पर ये वेल नोन है। ओके, log n, n, n स्क्वायर, n क्यूब, 2n, n फैक्टोरियल। ये इनके ग्राफ है, जैसे जैसे n बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसका टाइम बढ़ता जाएगा। ठीक है, इनका ये log n, n, n स्क्वायर टू पावर n, n। now now see what is the importance of this। okay, suppose this is our n and this is our suppose this is 100, this is 10 to the power 3, this 10 to the power 6, 10 to the power 9 time complexity। Now first, by just looking into this n, can you tell me what algorithm of time complexity can work at this n? Okay, n cube can work, n 4 maybe can also work, right? If it is 10 to the power 3, n square will work, n square log n will also work, right? N square won't work, n log n will work, and n can also work. See, oh, here we know that even n won't work, so log n will work, or root n will work. So I can think in this way। तो मैं, मेरे को log n है तो मैं सोच सकता हूँ यार बाइनरी सर्च के वे में, ये है ना, ये n स्क्वायर है तो मैं इसमें यार 2 इटरेशन वाला फॉर्मूला सोच सकता हूँ आई जे है। ये n क्यूब है तो मैं इसमें कोई 3 इटरेशन का फॉर्मूला लगा के इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोच सकता हूँ। Now there is one more thing why this thing is important।
why I'm discussing about the constant, that because speed really matters in coding competition. What happen? Suppose just by looking at the constant, you come up with two solutions. One is n log n solution, and another solution is n square. Okay. Now this n square solution is really easy to implement, and this n log n solution is something hard. और ये n स्क्वायर सॉल्यूशन में तुमको पता है यार कि तुमको रटा हुआ है, इसमें नो bugs will come and you will easily do it, right? But here it is possible that you will find some bug. Okay, and at the end this will take uh, suppose 25 minutes, and it is going to take 10 minutes. Now which algorithm you should apply while solving the question? It is n log n or n square? N log n, right? Because yeah, n log n is less complexity, less time complexity than n square. My code will going to be very efficient, right? No, you should apply n square, because क्या होगा जब कोई दो जने compete कर रहे हैं और उसने तुमसे पहले सॉल्यूशन सॉल्व कर दिया, तो उसके टाइमिंग तुमसे कम होगी और उसकी रैंक तुमसे ज्यादा होगी, भले तुम वो सॉल्यूशन n log n में करो, n स्क्वायर में करो, n क्यूब में करो, इट डजेंट मैटर एट ऑल। वो बस एक को बस पहले करना है उस सॉल्यूशन को। दिस हैपन्स इन कोडिंग कंपटीशन ओनली, ओके, अंडरस्टैंड दिस। So that's why I'm telling about the constraint and telling about this. uh, that's all from my side. Thank you guys, I hope you like the video, and the next video I'm going to cover about time complexity with the help of one good question. Discuss about theta, omega, and big O notation, and we will also discuss about amortized complexity. Have you heard this term amortized complexity? If no, do watch my next video. Till then, bye bye, see you guys.